Welcome student. Let us move into our lecture 6 of electrochemistry. Hope you are all well and studying passionately. In the last class we have discussed about the standard electrode potential. How to calculate that. That has been also done in the previous lecture. And I have told you that electrode potential have been calculated using standard hydrogen electrode, that is SHE, and student that has been engraved in a page in your NCERT book, जो बढ़िया से आपका NCERT book में दिया हुआ है, the full complete list of the standard electrode potential. You can see standard electrode potential, you can see in your book. This is the whole list that is in front of you. Okay. Now student, this list that you are seeing in your NCERT book is being studied by you in the form of activity series or electrochemical series in your junior class. And how you have studied this one, student? Now, if you just hold the book in upside down manner, then you can get the feel and you can get the idea. Yes, like this we have studied. If you remember, we have got the first element at the top is lithium, then it is potassium, then it is calcium, then it is sodium, magnesium, aluminium. Likewise, it goes on. When we reach to hydrogen, then comes silver, copper, okay? Silver, copper, then it will be gold, platinum. Likewise, the activity series we have studied. I hope you remember. Many of them have got certain tricks under their sleeves that how to learn this activity series. ठीक है, बहुत किसी को मालूम है यहाँ पर कैसे इसको लर्न किया जाता है. बहुत सारे टीचर्स कहते भी है यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से लर्न कर लेना. ठीक है, फाइन. सो you are all familiar with this activity or electrochemical series. So if you just hold that page of NCERT book upside down, you will get the whole feel that yes, this is the way how we have learned the activity series. ठीक है, मेटल ऊपर में रहता है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइकवाइज ये गिरते चला जाता है, हाइड्रोजन आता है, और उसके बाद if you remember it's the turn of silver, gold, platinum, copper, ये सब का टर्न आता है. ठीक है, फाइन. नाउ स्टूडेंट, let us see what is the application of this activity series या what is the application of this standard electrode potential list. इसका application क्या है, आज मेरा यही स्टडी का रहेगा मुद्दा. ठीक है, so let us start with the work. काम शुरू करते हैं स्टूडेंट. so our study will proceed like this. किस तरीके से वो हैंडल करेंगे यहाँ पर, we will proceed in this manner, that application of standard electrode potential. fine. पहला एप्लीकेशन predicts the, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, एनोड एंड कैथोड. We have already done this application. हम लोगों ने पहले भी कर चुका है ये application. ठीक है, fine. But let us quickly revise what you have done in the previous lecture. Predicts the anode and cathode. Student, if I take one zinc electrode and if I take another as copper electrode, and if I say you that देखो ना zinc का है standard electrode potential as, how we write it student? Let us write it once more. Zn2 plus zinc, we write it in this manner. It will be always reduction electrode potential. बार बार मैंने बोला है reduction reaction वाला electrode potential चाहिए. Therefore we call it as reduction standard electrode potential. This is standard recommendation of IUPAC. So this value is minus 0.76 volt. Similarly student, E copper to plus and copper will be equal to plus 0.34 volt. This is your case. कोई प्रॉब्लम नहीं. फाइन. नाउ स्टूडेंट, इफ आई आस्क यू दैट विच इज गोइंग टू एक्ट एज एनोड एंड विच इज गोइंग टू एक्ट एज कैथोड, ना दिस वैल्यू विल से, ये जो साइन है ये बताएगा एनोड और कैथोड कौन होगा. मैंने बोला था स्टूडेंट, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट, द standard reductor potential whose value is more negative will lose electron and positive मतलब क्या, gain electron. बार बार मैंने last lecture में बताया है. So therefore student, since it is negative in comparison to this one, this is positive student, so therefore this will lose electron, means zinc will lose electron, means zinc will act as anode and copper will act as definitely क्या, cathode. Likewise you can easily get the prediction of anode and cathode with the help of क्या, the activity series or standard reduction potential. Now student, once you have got the cathode and anode, I can easily calculate EMF of the cell. What was that formula? क्या formula हम लोग पढ़े थे to calculate that EMF of the cell? Now that calculation was student, the E naught cell is equal to E naught cathode minus क्या था, E naught anode, यही था. तो if I use these data, then student what I will start writing, the E naught cathode is copper, 0.34 volt minus 0.76 volt. ठीक है, this value will be 1.1 volt.
तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस टू, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है. सो जस्ट ए क्विक रिकैप अंडर द सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट स्टूडेंट, कंपेयर्स द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर. कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो हमको डिस्कस करना है. ठीक है, फाइन. एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डज इट वेरी वेरी इजीली, बहुत आसान तरीके से हो जाता है. यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट कट एकदम याद कर लेना, इनग्रेव इन योर माइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन कितना बढ़िया से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज द डिमार्केशन ऑफ क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या डिमार्केशन रहेगा यहां पर? जस्ट द ऑपोजिट वन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन करेगा दैट विल एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट वन. तो इफ आई कंपेयर दिस टू, तुमको अगर मैंने जिंक और कॉपर दे दिया यहां पर, तुमको अगर जिंक और कॉपर मैंने दे दिया और बोला कि बताओ विच वन विल एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम तुरंत स्ट्राइक करोगे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आउट ऑफ दिस टू विच विल गेन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरेटिव मैनर, दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू क्या, द जिंक. सो मेरे लिए गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा ना, कॉपर. आई होप यू हैव गॉट इट. उसी तरीके से इफ द क्वेश्चन कम्स which one is a good reducing agent, so your answer will be zinc. I hope you have understood how to just classify a good oxidizing and good reducing agent. Now student, with this note we will start with a question from your NCERT book. आप लोग NCERT book से ही मैं सीधा सवाल ले लेता हूं, मैं और ये लिखवा नहीं रहा हूं. You can also see in your book question number 3.2. गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेशियम का -2.93. यू कैन ऑल्सो सी इन योर बुक. सिल्वर है 0.80, देन है मरकरी, देन है मैग्नीशियम एंड देन है क्रोमियम. दे आर ऑल रिडक्शन पोटेंशियल्स दैट हैज बीन गिवन. तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट, जिसका जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट. फाइन. तो दे आर आस्किंग, क्या है क्वेश्चन, द अरेंज द मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वही मेरे लिए हो जाएगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट. कोई दिक्कत नहीं, फाइन. तो चलो करते हैं यहां पर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. यहां पर कौन है, द गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इंक्रीजिंग ऑर्डर डालने बोला है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डालने बोला है गुड रिड्यूसिंग एजेंट का. तो कैसे हम लोग करेंगे ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.2 ऑफ एनसीईआरटी. तो तुम खुद भी अब कर सकते हो. यू हैव गॉट दैट आइडिया हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस वन. यहां पर है ना, यहां पर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन, सॉरी गलत जगह लिख दिया. ये है कंपेयर्स द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना यहां पर. सो क्वेश्चन 3.2 एनसीईआरटी. सो ऑर्डर में कैसे डालेंगे स्टूडेंट, जो सबसे पॉजिटिव वो सबसे खराब, जो सबसे पॉजिटिव वो सबसे खराब. कौन है सबसे पॉजिटिव, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. ठीक है, कौन से सबसे पॉजिटिव स्टूडेंट आउट ऑफ देम कौन है ना, देखो सिल्वर है 0.80, मरकरी है 0.79. तो सबसे पॉजिटिव है सिल्वर, मतलब इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, फाइन. तो मेरे लिए ये हो जाएगा सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट. फिर आएगा मरकरी, क्लियर हो गया. फिर कौन आएगा स्टूडेंट यहां पर, तो फिर आएगा नेक्स्ट पॉजिटिव. यहां पर तब कोई पॉजिटिव है नहीं, तो लेस नेगेटिव हमको लेना है. Now rest all of them are in negative term. Okay, fine. Then I have to take the less negative as a good oxidizing agent. तो less negative मेरे लिए कौन है ना, क्रोमियम है. फिर मेरे लिए कौन है, मैग्नीशियम है. और सबसे बढ़िया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ पोटेशियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सो दिस इज योर वे हाउ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो लेट मी राइट द आंसर फॉर दिस वन. इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द सबसे खराब हो जाएगा तुम्हारे लिए सिल्वर, देन कम्स मरकरी, then comes your chromium, then comes your magnesium, and the last one is potassium. So this is your answer. Hope you have got that very easily and accurately. कोई दिक्कत नहीं, fine. So this way we will compare the relative stability of relative oxidizing and reducing powers. Satisfied? Now let us quickly move into the next one. प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा. दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज.
हाउ दे कैन एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी का चेकिंग स्टूडेंट एक ही जन कर सकता है, विच वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। एक ही जन कर सकता है स्पॉन्टेनिटी का स्टडी एक्यूरेटली। यहां पर वो कौन है स्टूडेंट? यू ऑल रिमेंबर, आई होप, दैट इज डेल्टा जी नॉट। यहां पर ये कर सकता है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट, ये कर सकता है। मेरा क्या यहां पर ना कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, मतलब फिजिबल होगा या नहीं होगा। एंड व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया स्टूडेंट? होप यू रिमेंबर, इफ इट इज नेगेटिव, if it is negative, the reaction is, process is क्या? Spontaneous. If it is negative, the process is spontaneous process. If it is positive, then obviously the opposite fact will come into play, that is non-spontaneous. और अगर डेल्टा आर जी नॉट यहां पर, मतलब उस रेडॉक्स रिएक्शन का अगर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मेरे लिए अगर जीरो रहा, if it this one is equal to zero, then the reaction will be said to be at क्या? Equilibrium. I hope you remember these things from your class 11. हम लोग 11 में ही पढ़े थे यहां पर, ठीक है। I hope you remember them from your class 11. ये कॉन्सेप्ट मेरे को इस्तेमाल करना होगा in order to know whether a reaction is possible or not. Clear? Now student, there is also one formula which defines the things mathematically. And what is that? And that mathematical formula actually gives the relationship between thermodynamics and electrochemical cell. ये रिलेशनशिप बैठाता है यहां पर, ठीक है। क्यों ना, ये तो थर्मोडायनेमिक टर्म है, इसको कैसे मैं इंक्लूड करूंगा इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर? ना दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बाय यू, बढ़िया से आपको याद रखना होगा। दैट फॉर्मूला गोज एज डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट क्या स्टूडेंट? ना सेल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद रखना होगा। आई होप नो प्रॉब्लम। इफ द थिंग्स आर नॉट एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर मान लो ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, देन ऑल्सो द फॉर्मूला विल वर्क फाइन, only the standard condition will be removed from the formula and the formula will remain just like del rg is equal to minus nfe cell. That's the only change that you are going to get. Fine, but anyway, let us concentrate on this at first. Del r g naught is equal to minus nf e naught cell. What are the things that is there? Now this is emf of the cell. ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस n इज न्यू टू यू। ये n मेरे लिए क्या है स्टूडेंट? यहां पर ना n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन द रिएक्शन, यहां पर, ठीक है। इन रिएक्शन मतलब जिस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन। आप लॉस लो या गेन लो, कोई भी एक तो वैल्यू लो, दैट इज एन। एंड व्हाट इज दिस एफ स्टूडेंट? द एफ स्टैंड्स फॉर द वर्ड फैराडे। एफ स्टैंड्स फॉर द वर्ड क्या? द फैराडे। ये फैराडे कहलाता है यहां पर। एफ स्टैंड्स फॉर द वर्ड फैराडे एंड इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम। 96500 कूलम, ये मेरा वैल्यू है फैराडे का। एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, और एफ मेरे लिए क्या है? ना फैराडे। कोई दिक्कत नहीं। और ये डेल आर जी नॉट तो बोल ही दिया यहां पर, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। और जब स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं रहेगा देन केवल नॉट हट जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हट जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन मैथमेटिकली। एंड इफ the del r g naught for the reaction comes out to be negative, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तब मेरा वो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ना स्पॉन्टेनियस है, मतलब होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, यू कैन सी ए नेगेटिव साइन ओवर देयर। अगर मेरा ई नॉट सेल, देखो ये है कांस्टेंट अमाउंट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये प्रॉपर न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू तुमको दिख ही रहा है। ये वाला अगर पॉजिटिव आया तब ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सामने नेगेटिव, मतलब ये भी मेरे लिए एक इनडायरेक्ट मेथड आ गया। वो क्या ना, इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, if emf of the cell is positive, del r g naught will be negative. याद रखिएगा, if emf of the cell is positive, del r g naught will be negative. तो ये तुमको याद रखने वाली बात हो गया यहां पर, ठीक है। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो ए शॉर्टकट वे टू फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। व्हाट इज दैट ना, इफ क्या हमने सीखा यहां पर, नेक्स्ट शॉर्टकट वे ना, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, ठीक है, प्रोसेस या रिएक्शन
इज क्या, स्पॉन्टेनियस। ये भी मेरे लिए एक नया चीज आ गया जो तुमको दिमाग में रखना है। आई होप यू हैव गॉट दिस, रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी वेल, बढ़िया से लर्न कर लीजिए। बहुत सारा न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल जस्टिफिकेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो लेट अस मूव टू इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे ये करता है, चलो इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे ये करता है। ठीक है, फाइन। तो लेट अस हैव क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप ही के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को लिया जाए यहां पर। तो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। रेडी, फाइन। तो चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.17 एक्सरसाइज क्या ये बोल रहा है स्टूडेंट ना, यूजिंग ई नॉट, क्वेश्चन 3.17 एक्सरसाइज यू कैन सी इन योर बुक आल्सो। यूजिंग ई नॉट वैल्यू प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। ठीक है, आप ई नॉट वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए और बोलिए कि ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है नहीं की। मतलब क्या ना, विल एजी प्लस रिएक्ट विथ कॉपर सॉलिड, दिस इज योर क्वेश्चन। क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, यही है। प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, कौन बताएगा स्टूडेंट यहां पर। नो ऑब्वियसली इट विल बी डेल्ट बाय हुम, द डेल आर जी नॉट। ये भी मैंने बोल दिया कि इनडायरेक्टली इट कैन बी डेल्ट बाय ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो चलो ईएमएफ ऑफ द सेल सबसे पहले निकालते हैं। सो ई नॉट सेल विल बी E naught cathode minus E naught anode. Now the next question comes, सर किसको कैथोड लेंगे और किसको एनोड लेंगे यहां पर, ये तो फॉर्मूला है मेरे पास। तो स्टूडेंट जैसा दिया हुआ है ट्राई टू राइट ए रेडॉक्स रिएक्शन विद दैट वन, क्योंकि तुमको क्या पूछा है, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, तो अगर रिएक्शन करेगा तो कैसा होगा, राइट दैट रिएक्शन स्ट्रेट अवे, कि अगर ये रिएक्शन किया तो कुछ इस तरीके से होगा। सिल्वर प्लस, यहां से देख के ही तुमको पकड़ में आ जाएगा, सिल्वर प्लस किस में बदलेगा ना, एजी में बदलेगा। और कॉपर किस में बदल जाएगा, अगर रिएक्शन हुआ तो कॉपर 2 प्लस में बदलेगा। सो दिस इज योर केस। If these two get reacted, then student Ag plus will change into Ag. You can get these things from the standard reduction potential representation. वहीं से तुमको मिल जाएगा। तो Ag plus से Ag, तो फिर Cu will change into क्या, Cu2 plus. Now student with the help of oxidation state get the anode and cathode. तो चलो देखते हैं यहां पर कैथोड और एनोड देखते हैं। तो Ag प्लस कहां बदला ना, Ag में बदला। कॉपर कहां बदला ना, कॉपर 2 प्लस में बदला। तो कॉपर 2 प्लस, तो तुमको तो दिख रहा है यहां पर, तुम तुरंत बोलोगे सर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, कॉपर 2 प्लस में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड। तो सिमिलरली Ag प्लस Ag, तो क्या हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या, कैथोड। वेरी सिंपली यू कैन इजीली गेट इट। ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं तुमसे बोलूंगा, तुम बोलोगे सर ये 0 होगा। ये क्या होगा ना, एज द पर आयन दैट इज +2। इसका क्या होगा ना, ये सीधा मेटालिक स्टेट में है तो 0। इसका क्या होगा ना, तुम बोलोगे सर +1। तो तुम किसी भी तरीके से स्टूडेंट एनोड और कैथोड को खोज लो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। वंस यू गेट दैट वन, राइट देम ओवर हियर, इसको यहां पर लिख डालिए। ई नॉट कैथोड मेरे लिए क्या हो गया ना, सिल्वर हो गया। सिल्वर का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, दैट इज 0.80 वोल्ट दिख रहा है। तो 0.80 वोल्ट माइनस एनोड, एनोड मेरे लिए कौन कौन काम कर रहा है ना, 0.34 वोल्ट दिख रहा है यहां पर। तो फिर इसका वैल्यू तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, व्हाट द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज 0.46 वोल्ट। ये आ गया। तो हमको दिख रहा है द वैल्यू इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू तुमको दिख रहा है। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्रोसेस इज या रिएक्शन इज, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या फिजिबल, लिख देंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। आई होप नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर सबका। दिस इज योर वे हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उम्मीद है सबको समझ में आया। नाउ स्टूडेंट लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, और एक सवाल लेते हैं चलो यहां पर, टू गेट द जॉब डन। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट टू ए ग्रेटर डेप्थ। चलो ये वाला के लिए स्टूडेंट बोल रहा है क्या, Fe3 प्लस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.17 का 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 कर रहा हूं, ठीक है, फाइन। सो Fe3 प्लस क्या Br माइनस से रिएक्ट करेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। विल दिस टू रिएक्ट, अरे रिएक्ट करेगा तो लिख लो ना कि क्या होगा ना, Fe3 प्लस Br माइनस विल चेंज इनटू, यहां से देख के बताओ Fe3 प्लस किस में बदलेगा ना, Fe2 प्लस में बदलेगा।
और Br माइनस किस में बदलेगा, देख के बोलो, Br माइनस किस में बदलेगा ना, Br2 में बदलेगा। दिस इज योर केस, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ना क्विकली गेट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होगा स्टूडेंट ना, ये वाला तो जो आयन है उसका वैल्यू +3, ये क्या होगा ना -1, ये क्या होगा +2, ये क्या ना एलिमेंटल स्टेट में ना 0। सो द चेंज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज हाउ ना Fe3+ बदल रहा है +2 में और माइनस बदल रहा है 0 में यहां पर। तो इट्स क्लियर कट, -1 से 0 लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब दिस वन इज एक्टिंग एज क्या स्टूडेंट ना ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड। तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी क्या यहां पर ना रिडक्शन, ऑब्वियसली दिस वन विल बी रिडक्शन, दैट इज कैथोड। तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया, फाइन। नाउ स्टूडेंट जस्ट गेट देयर वैल्यू ऑफ क्या ना EMF ऑफ द सेल। सो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड, E0 एनोड। कैथोड में डाल दो, क्या है आयरन है, दैट इज 0.77 माइनस 1.09 वोल्ट। तो ये वाला वैल्यू तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट ना -0.32 वोल्ट, ये तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, यू कैन सी इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू E0 सेल। मतलब क्या हो गया ना, रिएक्शन इज क्या स्टूडेंट ना नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉट फिजिबल। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया स्टूडेंट, क्यों ना ये नेगेटिव आ गया E0 सेल। सो देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सो दैट इज योर आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया कि कैसे करना है। अब 2-3 सवाल यहां पर स्टूडेंट हमको अक्सर मिलता, वो क्या सर, शुड आई हैव टू लर्न दिस वैल्यू, क्या हमको ये सब वैल्यू याद रखना होगा सर, क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये सब वैल्यू याद रखना होगा। नो 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 नो, यू डोंट हैव टू लर्न दिस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, निश्चिंत रहिए, लर्न नहीं करना है। ठीक, फाइन, गुड। नाउ स्टूडेंट लेट मी गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर वो क्या स्टूडेंट ना, यहां पर मैंने 2 सवाल किया है, यू आर हैविंग फ्यू मोर, तो रेस्ट ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ 3.17 एज क्या रहेगा होमवर्क, आपके लिए होमवर्क रहेगा, रेस्ट क्वेश्चन ऑफ 3.17, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट लेट अस डू सम न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस, यहां से, यहां पर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक ठो कर लेते हैं। यहां पर इस चैप्टर से बोल रहे हैं ना, इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल लेते हैं, विच इज अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आपके एनसीईआरटी बुक में ही है वो न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। ठीक है, फेमस न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3.3 एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, तो मैं और लिखवा नहीं रहा हूं, समझ ही रहे हो, यहां पर वीडियो को छोटा रखना है, नहीं तो अपलोडिंग बहुत दिक्कत हो जाता है। सो बट द होल मैटर शुड बी डन। सो प्लीज टेक पेन और थोड़ा सा किताब से आप लोग खुद ही देख लीजिए। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन 3.3, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, गिव्स एनर्जी तुमको निकालना है इस क्वेश्चन का, इस रिएक्शन का गिव्स एनर्जी चेंज निकालिए। डैनियल सेल का रिएक्शन तुमको दिख रहा है, दिस द रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल। EMF of the cell also told to you, तो you have just to find क्या यहां पर ना डेल्टा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो हमको डेल्टा RG0 निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। ठीक है, काम शुरू किया जाए, लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। तो मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, क्वेश्चन नंबर 3.3 इन टेक्स्ट, ये सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए स्टूडेंट क्या है फॉर्मूला ना, डेल्टा RG0 माइनस NFE0 सेल, दिस इज माय फॉर्मूला। नाउ फिल देम, फिल कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट व्हाट द इक्वेशन दैट हैज बीन गिवन ना, जिंक कॉपर 2+ गिव्स कॉपर प्लस Zn2+, दिस इज योर डैनियल सेल का रेडॉक्स रिएक्शन, सब जानते हो ना स्टूडेंट। क्विकली गेट द चेंज, जिंक से क्या हो रहा है Zn2+, कोई एक देखने से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी देख सकते हो, कोई एक देखने से ही हो जाएगा। जिंक देखो कहां से कहां बदल रहा है ना, ओवर हियर इट इज 0 एंड ओवर हियर इट इज +2, तो कितना का चेंज है स्टूडेंट यहां पर ना, ऑब्वियसली दिस इज एक्टिंग एज क्या स्टूडेंट यहां पर ना एनोड की तरह काम कर रहा है। और कितना का चेंज आ रहा है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड, यहां पर तो लॉस्ट हो रहा है, कितना का लॉस्ट हो रहा है ना, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+, यू आर ऑल फेमिलियर। तो यहां पर कितना का लॉस हो रहा होगा ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो फिर n का वैल्यू मेरे लिए यहां पर से निकल गया कि n का वैल्यू मेरे लिए क्या हो गया ना, 2 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ n विल बी 2।
नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू ऑफ एन विल बी 2 स्टूडेंट, तो यहां पर डाल दो वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू डाल दो ना, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना 2 इंटू फैराडे अभी बोले थे 96500 इंटू ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.1, तो वैल्यू फॉर दिस वन विल बी स्टूडेंट जो तुम्हारे पास आएगा -212270 जूल पर मोल इज योर यूनिट। इसको किलो जूल पर मोल में भी कभी कभी हम लोग शो करते हैं, तो उसको अगर हो जाएगा 2.270 यही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर मैं किलो जूल पर मोल में चला गया यहां पर किलो जूल पर मोल, तो उसको तो केवल चेंज करना है, वो अलग बात है यहां पर, तो दैट कैन बी इजीली डन। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर फॉर्मूला, सॉरी न्यूमेरिकल। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। So this is the way how to calculate this number of electron lost or gained, और स्टूडेंट उसी को इंक्लूड करके यहां डाल के काम कर लेना। यही वाला क्वेश्चन में स्टूडेंट एक साल बोर्ड्स में आ गया था, इस सेम क्वेश्चन में कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय ए डैनियल सेल। क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यही वाला क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड्स में आया था एक साल, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय ए डैनियल सेल, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन बाय ए डैनियल सेल, ये सवाल आ गया था यहां पर, ठीक है, फाइन। When EMF of the cell is 1.1 volt, this one, तो मैक्सिमम वर्क डन मतलब क्या नहीं, ये डेल आर जी नॉट ही निकालना है स्टूडेंट। मैक्सिमम वर्क डन का मतलब ये डेल आर जी नॉट ही निकालना है, यही है डिमार्केशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, यही है डिमार्केशन ऑफ मैक्स वर्क, यही है मेरा मैक्स वर्क स्टूडेंट, याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। दिस इज योर मैक्सिमम वर्क। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, एनीबडी रिमेंबर्स? द डेफिनेशन वाज स्टूडेंट क्या है यहां पर ना, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी पुट टू यूजफुल वर्क। याद करो, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी पुट टू यूजफुल वर्क। तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम वर्क निकालिए, मतलब क्या निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। आई होप यू हैव गॉट इट। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा तुम अब कर लोगे, सब मैंने बता दिया, क्लियर, फाइन। नाउ स्टूडेंट आई विल मूव इनटू another numerical from your NCERT book, ठीक है, fine. This is a famous numerical from your NCERT book, fine. This has also come up in your 2019 बोर्ड एग्जाम में भी ये आ चुका है, 2019 बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला सवाल आ चुका है, ठीक है। That is also again from your NCERT book, क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज का ये सवाल है, क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज का सवाल है। क्या है क्वेश्चन ना, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस, तुम भी देख सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज, ठीक है, खोल लीजिए। इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। जिंक Ag2O H2O गिव्स Zn2 प्लस Ag और 2OH माइनस, ये रिडॉक्स रिएक्शन तुमको दे दिया है। डिटरमाइन डेल आर जी नॉट एंड ई नॉट सेल, ये डिटर्मिनेशन करने दे दिया, और ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है Ag2O Ag और Zn2 प्लस जिंक, ई नॉट वैल्यूज आर ऑल्सो बीन गिवन। तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल फ्रॉम योर NCERT एक्सरसाइज विच हैज ऑल्सो कम अप इन योर बोर्ड्स 2019। हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे हम जाएंगे इसको करने के लिए, तो चलो करते हैं स्टूडेंट ना। सबसे पहले माई सिंपल टारगेट इज टू कैलकुलेट ई नॉट सेल, तो चलो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड। तो सी द वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू देखो जो दिया हुआ है, कैथोड एनोड यहीं से डिमार्केट कर लो स्टूडेंट। यू कैन सी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो जो कम पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो ज्यादा पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज कैथोड। दैट इज द सिंपल डिमार्केशन जो हमको करना होगा यहां पर, ठीक है, फाइन, आई होप नो प्रॉब्लम। तो किस तरीके से मेरा काम आगे बढ़ेगा यहां पर, किस तरीके से हमको काम, सॉरी स्टूडेंट दिस इज माइनस, सॉरी स्टूडेंट दिस इज माइनस 0.76 वोल्ट, सॉरी स्टूडेंट दिस माइनस 0.76 वोल्ट जिंक का है, यहां पर जस्ट मिस आउट हो गया। तो एनीवे तब तो बहुत आसान है स्टूडेंट। एनोड और कैथोड कौन होगा स्टूडेंट, जिंक मेरे लिए क्लियर कट है एनोड होगा, जिंक नेगेटिव है, जिंक एनोड होगा, और ये सिल्वर वाला Ag2O Ag ये पॉजिटिव है, ये क्या होगा, कैथोड होगा। देन इट बिकम्स वेरी सिंपल, आई एम सॉरी फॉर दैट एरर यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन उतारने में हमसे गलती हो गया। जिंक का होगा डेफिनेटली माइनस 0.76 वोल्ट, तब से तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर, फाइन। सो दिस इज माइनस 0.76 वोल्ट, सिंस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दिस विल एक्ट एज एनोड, दिस विल एक्ट एज कैथोड। तो चलो डाल देते हैं, कैथोड में इसको डाल दो यहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 0.76, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा ना 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट ई नॉट सेल, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, आई हैव टू कैलकुलेट क्या स्टूडेंट ना, डेल आर जी नॉट। तो चलो डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF
ई नॉट सेल, दिस इज इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू। चलो एन का वैल्यू ढूंढते हैं स्टूडेंट, किसी एक को पकड़ लो ना। चलो जिंक को पकड़ लेते हैं, जिंक ओवर हियर इन एलिमेंटल फॉर्म 0, ये क्या है ना +2, क्लियर। तो व्हाट्स द चेंज दैट यू आर गोइंग टू विजुअलाइज, क्या चेंज तुमको नजर आ रहा है ना सर? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर मतलब 2 मोल्स लॉस कर रहा है, 2 मोल्स लॉस कर रहा है, मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया ना 2, क्लियर। तो यहां डाल देते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल आपने निकाल लिया 1.1 वोल्ट। तो वाइल यू सॉल्व दिस वन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू क्लियरली, ठीक है, फाइन। तो जो हमको मिल जाएगा यहां पर दैट वैल्यू विल बी -212300, ठीक है, -212300 जूल पर मोल, ये हमको मिल जाएगा। स्टूडेंट पिछले वाला क्वेश्चन जो था मेरा यहाँ पर, ये वाला वैल्यू मैं तो किताब देख के कर दिया था, यहाँ पर मैंने किताब देख के कर दिया था। किताब में एकदम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फैराडे लिया हुआ है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फैराडे लिया हुआ है, दैट इज 96488, ये लेके किया है, तुम भी देख सकते हो बुक में। तो अगर तुम ये वैल्यू लोगे तो दिस वैल्यू विल कम इनटू योर फोर्स, ये वाला वैल्यू आएगा 212300। इसको मैं यही कर देता हूं 212300, यही मैं कर दे रहा हूं 212300, ठीक है, फाइन। इसको भी मैं यही कर दे रहा हूं। किताब में एकदम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फैराडे लेके ये सवाल किया हुआ है, क्वेश्चन 3.3 इन टेक्स्ट वाला, ठीक है। दे हैव टेकन द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फैराडे, दैट इज 96487 कूलम लेके किया हुआ है। बट ओवर हियर आई एम टेकिंग 96500, तुम लोग यही वैल्यू लेके करोगे, ठीक है। IUPAC का भी ये है कि यही वैल्यू लेके आप कर सकते हैं। तो दैट विल गिव यू द आंसर 212.300 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो सिमिलरली द सेम आंसर हैज कम अप फॉर दिस न्यूमेरिकल आल्सो। आई होप नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके फाइन स्टूडेंट। लेट अस क्विकली रिकैप व्हाट यू हैव स्टडीड by now. We are doing application of standard electrode potential. The first one, it predicts anode and cathode. Next one determines EMF of the cell, okay, fine. Third one compares the relative oxidizing and reducing powers. Next, predict the spontaneity of feasibility of redox reaction. सारा बढ़िया से कर लिए स्टूडेंट। दिस इज ए बिगर वन, ठीक है, टू बी डिस्कस्ड। तो न्यूमेरिकल भी कर लिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, फाइन। ना स्टूडेंट द सेम एप्लीकेशन ऑफ दिस वन ओनली, प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स, इसी का एप्लीकेशन स्टूडेंट, इसी का एप्लीकेशन विल सी इन ए डिफरेंट मोड ऑफ एप्लीकेशन। दैट इज क्या यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन इन ए डिफरेंट मोड फॉर वन ऑफ ए न्यू एप्लीकेशन। दैट इज क्या स्टूडेंट, देखो लिखा हुआ है predicts the spontaneity of a replacement reaction. Predict the spontaneity of a replacement reaction. इस तरह का सवाल आप लोगों ने किया है in your class 9 या 10 through the help of activity series. क्या तुमने पढ़ा था replacement reaction? I hope many of the students still remember कि जो मेटल ऊपर में है, जो मेटल ऊपर में है, मैं यहां पर उल्टा पकड़ा हूं, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज को उल्टा पकड़ा हूं, तुम्हारा NCERT जो दिया हुआ है, that gives you the correct idea what you have done in your junior class. तो जो मेटल ऊपर में रहता है वो नीचे का मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप यू रिमेंबर दैट स्टेप्स, दैट स्टेजेस, दैट वर्ड्स, ठीक है। क्या था द मेटल्स ऑक्युपाइंग द हायर पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स लाइंग बिलो इट इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन या लाइंग बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा है जो मेटल ऊपर है वो नीचे का मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट मैथमेटिकली काम करते हुए, था जस्ट थियोरेटिकली नहीं करेंगे जो जूनियर क्लास में किए थे कि हाँ करेगा हाँ नहीं करेगा, नॉट लाइक दैट। वो तो लिखेंगे ही विथ प्रॉपर मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन। तो फॉर दैट मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन कि कोई ऊपर का मेटल नीचे का मेटल को हटाएगा नहीं, तो ये कौन बताएगा ना, अगेन डेल आर जी नॉट ऑफ द रिएक्शन कौन बताएगा, अगेन द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द रिएक्शन दैट इज अंडर कंसीडरेशन। आई होप यू हैव गॉट इट। तो इसीलिए मैंने बोला पिछला एप्लीकेशन का ही ये पार्ट है बट अनदर नेम दैट हैज बीन गिवन कि चलो भैया रिप्लेसमेंट रिएक्शन पर कैसे ये काम करेगा। आई एम स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन 3.2 इन टेक्स्ट। कैन यू स्टोर CuSO4 aqueous इन जिंक पॉट? क्या आप जिंक पॉट में CuSO4 aqueous रख सकते हैं? ये मेरा सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। तो गिवन कॉपर का तुमको दे दिया है और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। देन स्टूडेंट हाउ टू प्रोसीड, कैसे हम काम शुरू करेंगे यहाँ पर, कैसे किया जाएगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं ना, मैंने पहले ही बोला है तुमको कि होगा या नहीं होगा हम जानेंगे कैसे, पहले रिएक्शन तो करवाओ, जो दिया है उसको तो रिएक्शन तो करवाओ यहाँ पर, ठीक है। मेक देम रिएक्ट टुगेदर, तो मेक देम रिएक्ट टुगेदर, तो जिंक CuSO4, ठीक है,
क्या हो जाएगा यहां पर ना ZnSO4 प्लस क्या ना Cu। अगर मैं इन दोनों को जिंक पॉट में, अगर मैं जिंक पॉट में यहां पर CuSO4 को रख दिया, ये मेरा CuSO4 ब्लू कलर का CuSO4, दिस इज योर जिंक पॉट, दिस इज योर जिंक पॉट, और ये मेरा है CuSO4, ये मेरा है CuSO4। तो अगर मैंने ऐसा रख दिया, ये तभी रह पाएगा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, ये तभी रह पाएगा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमको देखना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। अगर ये रिएक्शन फिजिबल हो गया तो हम नहीं रख सकते, और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ तो हम रख सकते हैं। गॉट द आइडिया क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस न्यूमेरिकल? तो लेट अस स्टार्ट। सो गेट द एनोड एंड कैथोड क्विकली एंड इट्स क्लियर। एक केवल देखेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा, ये +2 होगा, ये 0 होगा। इट्स क्लियर टू यू बाय नाउ, ठीक है। सो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये वैल्यू स्टूडेंट बार बार हम लोग किए ये दोनों को यूज करके, दैट इज 1.1 वोल्ट, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगा, मतलब ये रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होगा मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा यहां पर, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर लास्ट लाइंस ऑफ योर आंसर यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर ना, CuSO4 aqueous can't be kept in zinc pot, दिस इज योर आंसर। ये हो जाएगा यहां पर, हम नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, कांट बी केप्ट इन जिंक पॉट। सिमिलरली एक क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट, कैन कॉपर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद HCl aqueous? कैन कॉपर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद HCl aqueous? वैल्यू दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो पहले लिखो भाई क्या रिएक्शन पॉसिबल है वो तो लिखो, कि अगर कॉपर को HCl aqueous में मैंने डाला, मतलब H+ के साथ ट्रीट किया, तो फिर ये डेफिनेटली कॉपर 2+ में जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इफ आई बैलेंस इट, इट विल बी लाइक दिस। ये मेरा हो गया यहां पर, क्लियर है। तो अगर मेरा रिएक्शन होगा तो फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन, एंड फॉर प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन द बेस्ट वे टू कैलकुलेट क्या, बेस्ट एंड इजी वे टू कैलकुलेट क्या स्टूडेंट यहां पर ना, EMF ऑफ द सेल। सो ये 0, ये +2, तो कितना का भाई चेंज आ रहा है यहां पर ना, 2 का चेंज आ रहा है, ये क्लियर है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, तो ये 2 का चेंज आ रहा है, दैट इज माय ऑक्सीडेशन। हमको यही जानना था, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इट विल एक्ट एज क्या, एनोड। ये किसके तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा, क्लियर हो गया। तो अगर ये एनोड की तरह काम किया स्टूडेंट यहां पर, अगर ये एनोड की तरह काम किया, तब EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तब कैथोड कौन हो गया ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कैथोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कैथोड, मतलब ये हो गया मेरा 0.00 वोल्ट, माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, एनोड इज 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट ना सर, -0.34 वोल्ट, ये हमको मिल गया यहां पर। मतलब क्या हुआ ना, E0 सेल नेगेटिव, मतलब प्रोसेस इज क्या यहां पर, नॉट फिजिबल, प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, मतलब आप कॉपर से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते हैं, आप हाइड्रोजन गैस को नहीं बना सकते हैं फ्रॉम क्या, कॉपर। सो लाइकवाइज द क्वेश्चन विल कम स्टूडेंट विथ यू। तो सेम प्रेडिक्शन ही निकालना विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या EMF ऑफ द सेल, वो आपको समझ में आ गया, फाइन। सो दीज आर योर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक केवल होमवर्क कर लेना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.1, ठीक है। ये आप केवल कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, मैं तुमको बोल दे रहा हूं 3.1, सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.1, ये होमवर्क आप कर लीजिएगा, विच इज रिलेटेड टू दिस स्पॉन्टेनिटी फॉर ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। So you'll meet in the next lecture with new topic in the next class. Till then student, stay safe and thank you.